We'll be reciting from Adi Lila, chapter 2, text 62 onwards. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Hare Nam Sankirtan Mahotsav Ji Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ji Jai Tagore Premanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nayastaki. There are many slokas are there, so I'll do the pranam mantra now only. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshmridamayanam Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manovishrama Sthapitamena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Bandeham Sri Gurshadavadkamalam Sri Gurun Vaishnamam Ja Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadhuitam Savadutam Prajana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Cha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते
तप्तिकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान श्रुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टावतारे श्रीमद् जयप्रताप स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाने गौरकथाधामदाय नगरग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। जय श्रील प्रभुपाद। सुशील प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जन और गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से कृष्ण कथा कई दिनों से अविरल बह रही है। हम प्रभुपाद के ताउम्र ऋणी रहेंगे कि कम से कम इस सरल भाषा में, जो भाषा हमको समझ आती है, उसमें भगवान के बारे में हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो आज का श्लोक है, ये मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष ताहारे निर्जिते भगवत पद्य दक्ष। ये मते नाना रूपे करे पूर्व पक्ष ताहार निजिते भागवत पद्य दक्ष। ये मत नाना रूपे करे पूर्व पक्ष ताहार निजते भगवत पद्य दक्ष। सिनोनियम, ये मते 10, नाना many, रूपा forms, करे takes, पूर्व पक्ष the objection, tahare them, nirjite overcoming, bhagavata of Srimad Bhagavatam, padya poetry, daksha expert. Translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In this way, their arguments appear in various forms, but the poetry of the Bhagavatam expertly refutes all of them. हमने पिछले श्लोक में सुना कि some scholars argue that because Narayana has 4 hands, whereas Krishna has only 2, therefore Narayana is the original person of Godhead, and Krishna is his incarnation. Such unintelligent scholar do not understand the feature of the absolute. और आज कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो पोइट्री है, बेस्ड ऑफ द पोइट्री है, उसका कंक्लूजन इज रिफ्यूटिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ दोस फुलिश पर्सन। फुलिश पर्सन का यहाँ पर मतलब है दोज हु आर इल इंटेलिजेंस और मिस इन्फॉर्म। सब कहते हैं अरे भगवान तो कोई बोलता है 10वें अवतार हैं कृष्ण भगवान, कोई बोलते हैं 18वें अवतार हैं। हाँ 18वें 19-20 और 19 अवतार भगवान कहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो जो ब्रह्मा जी की बात को नहीं मानते हैं और जो श्रीमद् भागवतम जो उनकी ट्रांसलेशन है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नारायण सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, और कहते हैं सर्वोपरि कौन है? लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण तो नहीं है। न ब्रह्मा जी की बात माननी है, न श्रीमद् भागवतम की बात माननी है। अनेक जो विद्वान लोग हैं वो श्रीमद् भागवतम का प्रयोग अपने लिए करते हैं, कोई धर्म उपार्जन के लिए, कोई ज्ञान उपार्जन के लिए, कोई अपनी दैवी शक्ति को जगाने के लिए, अनेक प्रकार से उसका उपयोग होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो एसेंस है
उसको नहीं जानते। और इस प्रकार वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख सम नमः तम नमामि हरिपर। जब भगवत श्रीमद् भागवतम का जब कंक्लूजन है, और कोई धन उपार्जन के लिए, कोई ज्ञान उपार्जन के लिए, कोई दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कोई ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति सिद्ध वसिता प्रकाम्य के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो ये इंसानों के एक भ्रम है। और भ्रम क्या है कि हम जो करना चाहें, लोग कहते हैं ना, अरे आप किसी रास्ते चले जाओ, आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं अगर आप इंडिया में हो, आप बम्बई में हो, अगर आपने जो है कलकत्ता की टिकट ली, तो उस टिकट से आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। या आपने टिकट सही ली, बिल्कुल सही टिकट ली, और आप जो गलत गाड़ी में बैठ गए, तभी भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपका ध्येय क्लियर होना चाहिए, जगह क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, आकाशम पतितम तोयम यदा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देव को नमन करो, नमस्कार करो, वो भगवान केशव को जाता है। लेकिन भगवान केशव क्या कहते हैं, अविधि पूर्वकम। तुम अविधि पूर्वकम जो कार्य करोगे, तुम गोल तक कहां पहुंच पाओगे। तो श्रीमद् भागवतम ये कह रही है, तस्माद एकेन मनुषा भगवान सातो दाम्पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण में और विष्णु में और नारायण में जब फर्क नहीं, हम किसी का नाम ले लें। तो जब फर्क नहीं है तो कृष्ण का नाम लो। जब आप खुद कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है, हर चीज एक है, तो जब हर चीज एक है तो भगवान कृष्ण का नाम लो। नहीं नहीं, हम तो नारायण का लेंगे, या दुर्गा का लेंगे, या ब्रह्मा जी का लेंगे, या शिव जी का लेंगे, या कार्तिक का लेंगे, या गणेश का लेंगे। ऐसा तो नहीं चलता। और इस प्रकार भागवताम को पढ़ने के बावजूद भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? जो अपनी तरफ से जो स्वाध्याय करेगा, बिना किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किए हुए, बिना किसी गुरु की शरण लिए हुए जाएगा, तो वो भागवतम का अनेक अर्थ लगाएगा। नाना अर्थ कया प्रपाद यीशु से, यथो मत तथो पद। As many as are the head, so many are the ideas, so many are the expert opinion. लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं, the argument appears in very form, but the poetry of Srimad Bhagavatam expertly refutes them all. आगे श्रीमद् भागवतम की श्लोक है, पढ़ते हैं। वदन्ति तत्व तत्वविदस् तत्त्वं यस् ज्ञानम् अद्वयम् परमेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। डायरेक्ट मैं ट्रांसलेट में जाऊंगा। Learned transcendentalists who know the absolute truth say that it is non-dual knowledge is called is impersonal Brahman, localized Paramatma and personality of Godhead. ये तीनों एक हैं, एक रूप हैं। लेकिन अलग रूप क्यों बनाए गए हैं? ताकि जिसकी बुद्धि जिस प्रकार हो, जिस प्रकार समझना चाहे, या ब्राह्मण के रूप में, या परमात्मा के रूप में, या गोविंद के रूप में समझना चाहे, वो समझ जाए। हर आदमी एक ही चीज समझेगा जरूरी नहीं है। आपको मालूम होगा, आप लोग स्कूल कॉलेज में गए होंगे, एक टीचर 40 बच्चे पढ़ने वाले, वही किताब, वही समय है, लेकिन सब अलग अलग समझते हैं। और जब प्रश्न के उत्तर की बारी आती है, सब अलग अलग तरीके से प्रश्न का उत्तर देते हैं। सब एक तरह का उत्तर नहीं देते हैं।
थीम एक हो सकता है, लेकिन उसकी अप्रोच हमेशा अलग हो सकती है। तो ब्राह्मण को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए और गोविंद भगवान को समझने के लिए गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो नोबल लिटरेट हैं, ये जो बड़े बड़े पदों पे टीचर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, हम क्यों जाएंगे, हम खुद समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम उसका एग्जाम्पल देते हैं। माना आपने मेडिसिन की किताब पढ़ ली, सर्जरी की किताब पढ़ ली, आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे। या आपने किताब पढ़ डाली कि कैसे घुड़सवारी की जाती है, या आपने किताब पढ़ डाली कि नदी में कैसे तैरा जा सकता है। पहले दिन नदी में जाओगे तो बह जाओगे, पहले दिन घोड़े में चढ़ोगे तो या तो अपनी टांग तोड़ोगे या घोड़े की टांग तोड़ के आ जाओ। ये है कहानी। आपको मालूम है, जब घोड़ा रग्बी जिताता है तो उसकी बड़ी मान मर्यादा होती है। और अब जब घोड़ा जब बूढ़ा हो जाता है, उसका मालिक, जिसको उसने हजारों लाखों करोड़ों डॉलर दिए होंगे, वो अपने हाथ से गोली मार के उसको मार देता है। गोली मार के मार देता, अपने हाथ से मार देता। अब देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, हम कभी कभी गुरुद्रोही बन जाते हैं, कभी कभी हम गुरु सेवी बन जाते हैं, कभी कभी हम गुरु के नाम पर अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर डालते हैं। कई साल पहले की बात थी, गुरु महाराज ने हमसे कहा कि वृंदावन में उन्हें एक भक्त मिला और उसने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज मैं मिडिल ईस्ट जा रहा हूं, कृपया आप रिकमेंड कीजिए ताकि मैं अपनी संस्था के लिए कुछ धन उपार्जन कर पाऊं। गुरु महाराज ने कहा प्रीचिंग के लिए जाओ। तो गुरु महाराज हमें बताते हैं, वृंदावन के लिए जो पैसे उगाने गया था, मिली से कुछ पैसे मिलेंगे, 5-10 लाख रुपए मिले होंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने, गुरु महाराज कहते उसने अपना वृंदावन बना लिया। अब उसके वृंदावन से कोई लेना देना, अब अपना वृंदावन हो गया, अपना काम करता है। तो इसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने वही उल्लेख किया है 1.2.11। और इस प्रकार हम लोग, इतना शानदार हमारे पास शास्त्र है, समझने की शक्ति भी है अगर हम समझना चाहें, मनन करने की शक्ति है अगर हम मनन करना चाहें, हमको प्रीचिंग करने की शक्ति है अगर हम प्रीचिंग करना चाहें। लेकिन हमारे विचार तो बनते हैं, मन नहीं बन पाता, वो कार्य नहीं कर पाते। तो इसलिए कहते हैं, गुजराती में कहते हैं, पुस्तक में बांचो, पुस्तक में समायो। जो किताब में पढ़ा वही किताब में ही रह गया। हमने न तो कोई शिरोधार्य किया, न कोई अंगीकार किया। और बड़े हम कहते हैं, हाँ हमने श्रीमद् भागवतम सुनी है, हमने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा है। अरे प्रभु, हमारे घर में श्रीमद् भागवतम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि श्रीमद् भागवतम है कितने श्लोक। ये मालूम नहीं है कि फर्स्ट कांडों में कितने चैप्टर हैं। खैर आपको तो मालूम होगा, बताता हूँ 19 चैप्टर है। तो हम इच्छा शक्ति रखते हैं, कर्म शक्ति और मन शक्ति नहीं रखते हैं। इच्छा शक्ति है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। बहुत बार कहते हैं जब इंडिया जाएंगे, हम इस तीर्थ स्थान में जाएंगे, उस तीर्थ स्थान में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और करते कुछ भी नहीं। तो ब्राह्मण को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, गोविंद को समझने के लिए गुरु के आश्रय की जरूरत है।
शिक्षा गुरुओं से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रेक्टिफाई नहीं होगा जब तक आपने दीक्षा नहीं प्राप्त कर ली। और दीक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। हम भागवत में सुन रहे हैं कि किस प्रकार छोटे से बालक ध्रुव ने कैसा तप किया, और तप करने से क्या हुआ, भगवान ने उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी तरह परिपूर्ण की। लेकिन अगर वो समझ हमें आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आगे टेक्स्ट 64 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सुन भाई श्लोक करह विचार, एक मुख्य तत्व तीन ताहार प्रचार। My dear brothers, kindly listen to the explanation of this verse and consider its meaning. The one original entity is known is in three different features. क्योंकि हर आदमी गोविंद को नहीं समझ सकता है, कृष्ण को नहीं समझ सकता है, लेकिन हजारों लोग परमात्मा को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा को नहीं समझ सकते हैं, वो इम्पर्सनल ब्रह्मन को समझ सकते हैं। तो भगवान हम सबकी सुविधा के लिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान का रूप दिया है, ताकि एन केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेशयात्, कृष्ण का नाम हमारे शरीर में निवेश कर जाए। आगे टेक्स्ट 65, आद्वर्य ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तानार रूप। Lord Krishna himself is the one undivided absolute truth, the ultimate reality. He manifests himself in three features as Brahman, Paramatma and Bhagwan. Purport में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, in this verse from Srimad Bhagavatam cited above 1.2.11, the principal word Bhagavan indicates the personality of Godhead, and Brahman and Paramatma are concomitant, deduced from the absolute personality, as a government and its minister are deduction from the supreme executive head. In other words, the principal truth is exhibited in the three different phases. The absolute truth, the personality of Godhead, Sri Krishna Bhagavan, is also known as Brahman and Paramatma, although all these features are identical. आप अपने दिल में सोच के देखिए, आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण हर जगह हैं, कण कण में भगवान है ना। लेकिन कभी आप चर्च गए, कभी आप मॉस्क गए? नहीं, हम कहते तो हैं भगवान हर जगह हैं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। मुझे मालूम है, एक बार मैं गुरु महाराज को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा था, हमारा जो नैमिषारण्य था वो एक बहुत बड़ी मॉस्क के बगल में था, और हम 3rd फ्लोर में रहते थे। तो पता नहीं गुरु महाराज ने मुझसे क्यों पूछ लिया। उन्होंने कहा, जब तुम ये देखते हो, ये स्ट्रक्चर देखते हो, तुम्हारे दिल में क्या आता है? मैंने समझा मैं गुरु महाराज का बहुत बड़ा शिष्य हूँ, बहुत बड़ा शिष्य हूँ, क्योंकि अब मैं भागवतम देता हूँ, अब मैं गीता पे प्रवचन करता हूँ। तो मैंने गुरु महाराज का, मैंने कहा गुरु महाराज मैं अपना मुंह इधर कर लेता हूँ। गुरु महाराज हंस पड़े, बोले अच्छा, तो तुमको मालूम है कि कृष्ण हर जगह है ना, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बाकी हर जगह है। यह अधूरा ज्ञान, हर जगह है लेकिन यहाँ नहीं हो सकते। भगवान हर जगह है,
लेकिन मेरा जो तगड़ा दुश्मन है उसके दिल में भगवान ही घुस। इतना क्रूर कैसे हो गया अगर उसके दिल में परमात्मा है तो। हाँ, हमारे बच्चों के हृदय में है, बीवी के हृदय में है, हस्बैंड के हृदय में है, दोस्त के हृदय में है, लेकिन दुश्मन के हृदय में कतई नहीं। और फिर हम भगवान को समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटे से मैं जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, सुनऊ दशरथ अजीर बिहारी। भगवान तो सबके प्रेम है। भगवान को सबके अंदर देखो और सब चीजों को भगवान के अंदर देखो। जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत्। हमारा ज्ञान अभी अभी पक्व है, हमारा ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है, और आप और हम कई सालों से भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्युअलिटी से फिर मन में है। और भगवत गीता क्या बोलती है? अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा है बचाओ। सब पे मैत्र और करुण की दृष्टि रखो, लेकिन नहीं, दुश्मन तो दुश्मन है, कैसे कर सकते? मैंने आपको बताया होगा कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो हमारे डॉक्टर प्रतीक अरोड़ा थे, उन्होंने मेरी पीठ में इंजेक्शन लगा दिया था। क्या बोलते हैं इंजेक्शन? एपिड्यूरल। एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा दिया था। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, आप सुनाएंगे? कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। अरे वाह, जैसे उन्होंने मुझे ये पूछा मैं खुश हो गया, मैं बोलने लग गया, मेरी जुबान कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जब 4-5 घंटे बाद होश आया, अरे मैंने कहा मेरी कथा पूरी हुई कि नहीं हुई? तो प्रभु ये तो हमारी हालत है। चलिए एक श्लोक और मैं पढ़ लेता हूं। ये श्लोकेर अर्थ तुम्हें हैला निर्वचन 66। ये श्लोकेर अर्थ तुम्हें हैला निर्वाचन आर एक सुनो भागवतेर वचन। The import of this verse has stopped you from arguing. Now listen to another verse of Srimad Bhagavatam. तो क्या बोल रहे हैं? Now stopped argument. आपको मालूम है ना आर्गुमेंट कौन करता है? आर्गुमेंट का मतलब होता है जो मैं कह रहा हूं वो मानो मैं सही कह रहा हूं। आर्गुमेंट जैसे पति पत्नी में हो जाए, दोस्तों में हो जाए, पड़ोसी में हो जाए, आर्गुमेंट मैं सही हूं। लेकिन श्रीमद् भागवता में होता है डिस्कशन। कैसे डिस्कशन? कि व्हाट इज ट्रूथ, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी या प्रभुपाद ने लिखा है कि स्टॉप यू फ्रॉम आर्गुइंग। अब आप आर्गू नहीं कर सकते ना। खाली एक ही श्लोक नहीं है, एक और श्लोक भी है। आइए श्लोक को पढ़ लेते हैं, बहुत शानदार श्लोक है, उसमें भी परपोर्ट है। आप पढ़ लेते हैं, कोई बात। सबको मालूम है श्लोक। ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। हम 1000 बार इस श्लोक को पढ़ते हैं। All these incarnations of Godhead are either planetary portions or parts of the planetary portions of the Purusha Avatar. But Krishna is the supreme person of Godhead himself. In every age, he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra. What are the enemies of Indra? Rakshasa, Adbhutas, राक्षस है इन पर्टिकुलर। तो जब कभी राक्षस की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है तब भगवान कहते हैं संभवामी युगे युगे। संभवामी युगे, स्वयं आत्म माया में भगवान आते हैं। ये स्टेटमेंट परपोर्ट है, वो उसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा है।
This statement of Srimad Bhagavatam is 1.3.28 definitely negates the concept that Krishna is an avatara of Vishnu and Narayana. Lord Sri Krishna is the original person of Godhead, the supreme cause of all causes. आपको मालूम है बहुत सारे लोग क्या आर्गुमेंट देते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी नारायण को चोरी करते देखा? आपने नारायण को कभी किसके वस्त्र हराते देखा? कभी नारायण को आपने झूठ बोलते देखा? इसके अंदर तो सारी ये कमी है, आप उसको भगवान बोलते हो? ये आर्गुमेंट है। This verse clearly indicates that incarnation of personal Godhead, such as Sri Rama, Narasimha, and Varaha, all undoubtedly belong to the Vishnu group. But all of them are either planetary portions or portions of the planetary portions of the original personality of Godhead, Lord Sri Krishna. आपको मालूम है 3 फीचर नरसिम्हा, रामा और कृष्णा, दे हैव षड ऐश्वर्य, लेकिन नरसिम्हा देव में और राम में वो शक्ति नहीं थी कि अपने भक्तों को जो है वो गोलोक वैकुंठ धाम पहुंचा सके। हिरण्यकश्यप का हिरण्याक्ष का वध हुआ नरसिम्हा के द्वारा, वो बेचारे वैकुंठ नहीं जा पाए। रावण का कुंभकर्ण का वध हुआ श्री राम जी के द्वारा, वो बेचारे वैकुंठ नहीं जा पाए। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया, वो उनके शरीर में घुस गए और उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब है ये सारे पर्सनालिटी। मान लिया जाए आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉस कहे तो बिना बॉस के कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण जो लिबरेशन देते हैं ना, मुक्ति सिर्फ भगवान प्रदान करते हैं, एब्सोल्यूट मुक्ति है, छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए ये कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, को कुछ नहीं। अच्छा मान लिया जाए कृष्ण ना भगवान हो तो हमारे स्थिति पे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर के लिए ना हो भगवान तो क्या फर्क पड़ता है? और इस दुनिया में भगवान ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क ये पड़ेगा, हम इस मृत्यु संसार में जो नहीं हिचकोले लेते रहेंगे, बस यही फर्क पड़ेगा। जब तक भगवान के नाम की शरण नहीं ली, हम बैतरणी को पार नहीं कर सकते हैं और अपने स्वधाम नहीं जा सकते। अभी हमारे ऊपर है दारो मदार है, हम भगवान को माने न माने, भगवान की पूजा करें या ना करें, भगवान को शरणागति करें या न करें, भगवान के बारे में सुने या न सुने। भगवान ने किसी गान पे जो है राइफल नहीं रखी हुई है, पिस्टल नहीं रखी हुई है, ये करेगा नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। यथा ईश्वर से तथा को सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषस्तु न प्रिय। सारे प्राणी जो भी हैं सब मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं, सम्मोह में सबके लिए बराबर। अभी हमारे ऊपर दारो मदार है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पाना है। जब तक हमारा लक्ष्य परिलक्षित न हो, जब तक गोल निर्धारित न हो, हम कहां भाग जाएंगे। मानव सड़क में चल रहे हैं, अब आपको मालूम ही नहीं है हमें कहां जाना है, तो उम्र खत्म हो जाएगी, आप सड़क खत्म नहीं होगी। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अब आपको मालूम ही नहीं है कहां जाना है, क्या किया जाए। और माना एक तरह मान लीजिए आपको भूख भी न लगे, प्यास भी न लगे, अब चलते जाएंगे, चलते कहां जाएंगे, आप कहां ठहरेंगे, आप पता ही नहीं। तो गोल को निर्धारित होना पड़ता है। और हमारा गोल क्या है, किसको मालूम हमारा गोल क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, हमारी जिंदगी का गोल क्या है? बैक होम, बैक टू गॉड। ऐसे आप सब लोग गलत बोल रहे हैं। हमारे जीवन का ध्येय है वैष्णव सेवा। जब तक वैष्णव सेवा नहीं होगी, विष्णु सेवा नहीं हो पाएगी, और जब तक विष्णु सेवा नहीं हो पाएगी, हम बैक टू गॉड हेड हम पहुंचना छोड़ो, बोल भी नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच।
for investing your time with me for these 32 minutes maybe. Hare Krishna.